Good morning, all my dear students, standard 12, subject math, derivative of implicit function. Exercise 5.3. Question number first. Find derivative of 2x plus 3y equal to sin x. Here, find dy by dx, each term derivative dy dx x plus 3 dy by dx equal to dy dx sin x. Each term derivative, first, second and third. dx cancel, 3 dy by dx equal to cos x. Find value dy by dx, 3 dy by dx equal to cos x minus 2. Now dy by dx equal to cos x minus 2 upon 3. Similarly, you solve question number second, third. Now solve fourth. xy plus y square equal to tan x plus y. Tan x and plus y are both different. Here xy may be used multiplication. Real x and y are two different functions. X dy by dx plus y dx by dx plus dy by dx y square equal to dy by dx tan x plus dy by dx y. For our students, xy may be presence of multiplication, y square direct derivative, tan x derivative plus dy by dx. X dy by dx plus dx cancel y, here 2y, now dy by dx. Tan x sec square x plus dy by dx. Here dy by dx present left hand side, right hand side, both arrange in left hand side. x dy by dx को एक साइड में ले लो, मान प्लस 2y dy by dx minus dy by dx equal to sec square x plus y, here आएगा minus 1. dy by dx कॉमन कर दो आप, तो x plus 2y minus 1 sec square x minus 1. dy by dx equal to sec square x minus y upon x plus 2y minus 1. That answer. Question number 3. X square direct derivative, xy may be used multiplication, y square 2y dy by dx. Question number 6. Maybe same process. X cube x square y may be used multiplication, xy square may be used multiplication. Left hand side all arrange dy by dx, right hand side the number and variables. dy by dx common. Question number 7. Sin square y plus cos xy equal to t. dy by dx sin square y, dy by dx cos xy, dy by dx t.
k is constant, derivative 0. Sin square first derivative power x power n x n minus 1. Here power 2 sin y, फिर d by dx sin y. Cos derivative sin xy, again d by dx xy, that is here 0. Sin y derivative cos y, 2 sin y cos y, then d by dx. Sin xy, here इनका मल्टीप्लिकेशन x y derivative plus y x derivative 1 equal to 0. Now multiply 2 sin formula 2 sin a sin b, आप सिंपल कर सकते हो sin 2, तो 2 sin y cos y sin 2y dy by dx minus x sin xy dy by dx minus y sin xy, ब्रैकेट को फिल कर दिया, माइनस sin xy मल्टीप्लाई x dy by dx, x बाहर आ गया sin xy dy by dx, प्लस माइनस माइनस y sin xy. ओके, नाउ dy by dx कॉमन, sin 2y माइनस x sin xy, राइट साइड जाएगा y sin xy. ओके, नाउ dy by dx, ये पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी, y sin xy अपॉन sin 2y माइनस x sin xy. ओके, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब कई जगह पे डिवाइड बाय डीएक्स होगा, उसको हम अरेंज करके सिंगल डिवाइड बाय डीएक्स में क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे. डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, राइट ऑल फार्मूला डी बाय dx sin इनवर्स x 1 upon 1 minus x square, d by dx tan inverse x 1 upon 1 plus x square, d by dx sec inverse x 1 upon x root x square minus 1. Question number 9, y equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. Write all formula in form of tan. Sin 2a 2 tan a 1 plus tan square a. You know that sin 2x 1 plus x square, पर ये sin इनवर्स को कैंसिल करना है. आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नो डाउट. डायरेक्ट sin इनवर्स का फार्मूला लगा डी बाई बाई, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट करें. डी बाई dx sin इनवर्स x 1 upon root 1 minus x square, 1 upon root 1 minus 2x upon 1 plus x square whole square, d by dx 2x upon 1 plus x square. इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ डिवीजन रूल बनाएंगे, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा. लेकिन उससे आसान सिंपल फॉर्म में आपको अगर डिवीजन करना है तो आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है. साइन इनवर्स साइन थीटा, तो साइन साइन कैंसिल, ओनली थीटा का डेरिवेट करना होगा. यू पुट x इक्वल टू tan थीटा. आप इस क्वेश्चन में tan थीटा ले, साइन इनवर्स 2 tan
थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर। डेरिवेटिव बिल्कुल आसान होता है। साइन इनवर्स दिस इज साइन 2 थीटा फार्मूला। साइन साइन कैंसल y इक्वल टू 2 थीटा। हियर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स यस। थीटा फाइंड आउट करेंगे मींस y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। डायरेक्ट आप डेरिवेट कर दो। अब tan इनवर्स का डेरिवेट यू नो दैट 1/1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर? आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूट करके भी हम डेरिवेट कर सकते हैं। दैट इज सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। आप डायरेक्ट डेरिवेट करेंगे 1/1 प्लस x स्क्वायर 1/1 प्लस ये पूरा x मान लिया जाएगा होल स्क्वायर, फिर इसको अलग से डेरिवेट करेंगे। दैट इज द प्रोसेस लॉन्ग टाइम। tan 3 थीटा फार्मूला tan 3a you know that 3 tan a minus tan 2a 1 minus 3 tan स्क्वायर। ओके, अगर आप कभी भूल जाओ तो डायरेक्ट भी करो। तो हियर x इक्वल टू tan थीटा कंसीडर कर दिया, y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा, x की जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया 1 minus 3 tan स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा, y इक्वल टू 3 थीटा। हियर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके, y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। dy by dx 3 d by dx tan इनवर्स x। नाउ 3 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 y इक्वल टू cos इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x square where x equal to tan theta. This is it. Cos inverse cos 2 theta, 2 theta, theta equal to tan inverse x. 11 में x equal to tan theta, 12 में भी consider x equal to tan theta. Sin inverse 1 minus x square and 1 plus x square. Okay. इसलिए मैं बोल रहा था कि साइन इनवर्स ये cos 2 थीटा है, फिर उसको हम पाई बाय करते हैं। x इक्वल टू tan थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इसको इनवर्स को कैंसिल कर दो, आपका क्वेश्चन आसान है। ओके, साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब इसको साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा फार्मूला मैंने देखा था। साइन इनवर्स cos थीटा पाई बाय 2 माइनस इनवर्स टेबल y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 वेयर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। पाई बाय 2 डेरिवेट 0 dy by dx minus 2 upon 1 plus x square. Similarly, 13 में भी कर cos inverse 2 tan theta 1 plus tan square theta sin 2 theta में जाएगा। सेम आंसर है। cos inverse sin 2 theta cos inverse pi by 2 sin cos pi by 2 minus 2 theta. Question number 14
x इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट कास स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कास थीटा। दिस इज फार्मूला साइन इनवर्स साइन थीटा। y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा मीन्स साइन इनवर्स x। डेरिवेट बहुत आसान है, 2 अपॉन 1 रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, x इक्वल टू कास थीटा, क्योंकि 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कास थीटा। क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल टू सेक इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, x इक्वल टू कास थीटा। ऐसा मैंने क्यों लिया? 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फार्मूला होता है? कास थीटा। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन कास 2 थीटा, y इक्वल टू सेक इनवर्स ऊपर जाएगा सेक 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा इक्वल टू कास इनवर्स x, y इक्वल टू 2 कास इनवर्स x, कास इनवर्स x डेरिवेट माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, एंड 5.3 कंप्लीट। एक्सरसाइज 5.4, में भी ना कंसीडर टी, हम टी कंसीडर कर लेंगे। यूज ऑफ डिवीजन मेथड, चेन रूल, मैक्सिमम चेन रूल है, डिवीजन मेथड है, वो आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.4, कोई भी फार्मूला नहीं है, d बाई डी एस ई पावर एस अपॉन साइन एस। आप इसको डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, d बाई डी एस ई पावर एस कोसेक एस, साइन को चेंज कर दो। यू यूज डिवीजन, नो प्रॉब्लम, आप यूज कर सकते हो, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ई पावर एस d बाई डी एस कोसेक एस प्लस कोसेक एस d बाई डी एस ई पावर एस, ई पावर एस माइनस कोसेक एस डेरिवेट माइनस कोसेक एस इनटू काट एस, कोसेक एस इनटू ई पावर एस। फाइंड द कॉमन, ले सकते हैं, नहीं तो छोड़ दो, ई पावर एस ले दो, कोसेक एस माइनस काट एस प्लस 1। Similarly, question number 2, d by dx e power tan inverse x. You know that e power x derivate e power x tan inverse x, फिर बाद में हम इसको डेरिवेट करेंगे, नाम इनवर्स को लगा देंगे tan inverse x, e power tan inverse x 1 upon 1 plus x square। इसी तरह फोर्थ नंबर है साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स,
देखो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 3y इक्वल टू e पावर s स्क्वायर dy बाई dx e पावर s स्क्वायर डेरिवेट e पावर s स्क्वायर। अगेन में हम s स्क्वायर को डेरिवेट कर लेंगे dy बाई dx s स्क्वायर तो 2s e पावर s स्क्वायर। 4 नंबर बिल्कुल आसान है, आप कंटीन्यूअस रूल लगा दो या चेन रूल लगा दो। y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e पावर माइनस चेन रूल लग जाएगा dy बाई dx साइन tan इनवर्स e पावर माइनस फिर dy बाई dx tan इनवर्स e पावर माइनस s फिर से dy बाई dx e पावर माइनस s चेन रूल लगा साइन पूरा x हो गया फिर tan कर दिया e पावर माइनस साइन डेरिवेट cos tan इनवर्स e पावर माइनस s tan इनवर्स डेरिवेट 1 प्लस e पावर माइनस s होल स्क्वायर e पावर माइनस s माइनस e पावर s अरेंज कर दो माइनस e पावर माइनस s cos tan इनवर्स e पावर माइनस s अपॉन 1 प्लस e पावर माइनस s। ओके सिमिलरली 5 है log का डेरिवेट 1 अपॉन cos e पावर x cos डेरिवेट माइनस sin e पावर x e पावर x डेरिवेट e पावर x। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 dy बाई dx e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर 5 कट जाएगा e पावर x क्यूब e पावर x 2 e पावर x पावर 5 आप अलग अलग डेरिवेट कर दो 5 का देखो e पावर x स्क्वायर dy बाई dx e पावर x क्यूब dy बाई dx e पावर x पावर 4 dy बाई dx e पावर x पावर 5 e पावर x डेरिवेट e पावर x स्क्वायर फिर x स्क्वायर का डेरिवेट सिमिलरली e पावर x क्यूब dy बाई dx x क्यूब सिमिलरली e पावर x 4 dy बाई dx x पावर 4 e पावर x 5 dy बाई dx x पावर 5। ओके e पावर x स्क्वायर 2x e पावर x क्यूब 3x स्क्वायर e पावर x पावर 4 4x क्यूब e पावर x पावर 5 5x पावर 4 दैट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 y इक्वल टू रूट e पावर रूट x you know that dy by dx रूट x 1 upon रूट x यहाँ पे क्या हो जाएगा dy by dx is equal to dy by dx रूट e पावर रूट x। अभी रूट के अंदर दिए गए है वो किसका फॉर्मूला लीजिए x की प्लेस में फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2 रूट e पावर रूट x फिर किसको डेरिवेट करना है e पावर रूट x का। यू नो दैट e पावर x डेरिवेट e पावर x रूट x हो गया फिर लास्ट में किसको डेरिवेट करेंगे रूट x।
पावर x रूट x ऊपर हो गया, रूट का अलग से डेरिवेट 2 रूट x, तो ये हो गया e पावर रूट x, 2 2 या 4 रूट x e पावर रूट x। एक नंबर log sin x 1 upon log x into log x, cos x log x, डिवीजन रूल लगा लो। 10 नंबर y equal to cos log x plus e पावर x, सेम रूल है, dy by dx फर्स्ट डेरिवेटिव cos log x plus e पावर x, सेकेंड मल्टीप्लाई का सेम रूल dy by dx log x plus e पावर x। सबसे पहले cos b पूरा x मान लेंगे, फिर इस x को अलग से डेरिवेट करेंगे, माइनस साइन log x e पावर x dy by dx log x 1 by x e पावर x 1 e पावर x, दैट आंसर। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, अगेन टॉपिक है आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। फॉर ऑल स्टूडेंट्स, if questions may be critical position, वैसे तो log हम हर जगह ले सकते हैं, नो डाउट, लेकिन log हम तभी लेते हैं जब क्वेश्चंस बिल्कुल क्रिटिकल पोजीशन, मतलब मीन्स आप उस क्वेश्चन में एडिशन नहीं यूज कर सकते, सब्ट्रैक्शन नहीं यूज कर सकते, डिवीजन भी करने में प्रॉब्लम होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉब्लम। जब ये चारों प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी का यूज करने में आपको प्रॉब्लम हो, दैट में बी टेकिंग अ लॉग। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन में भी हम लॉग ले सकते हैं, लेकिन हमें वही के लॉग यूज करना है जहां पे क्वेश्चन में क्रिटिकल पोजीशन हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने y की वैल्यू दिया है 3 sin x स्क्वायर रूट x tan रूट x अपॉन रूट 5x प्लस 4 कोसेक स्क्वायर 3x माइनस 3 रूट x माइनस 4 x प्लस 2। अब ये क्वेश्चन है हमारा। इसी तरह से हम इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन है, समझो आप। अब आप सोचो तो पहली चीज तो डिवीजन रूल लगाएंगे, ये पूरा f2 ये पूरा f1 सॉल्व करने में पेज भी कम पड़ जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर जिसका डेरिवेट करना होगा वहां पे 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है, फिर से 3 टर्म को मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, आप डिवीजन करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे फिर से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा, लेकिन वो क्रिटिकल पोजीशन है, गलती भी हो सकती है आपसे। लेकिन इफ यू टेक अ लॉग, अगर आप लॉग ले लेंगे तो यही क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। फर्स्ट में भी लॉग में भी सम रूल्स हैं, जैसे लॉग ई बेस ए बी सी। अगर 3 फंक्शन लॉग में मल्टीप्लाई में है तो वो किस में जाएंगे, एडिशन में, लॉग ए लॉग बी की बी प्लस लॉग
EPC पहले फार्मूला हुआ। सेकेंड, if two function वे भी डिवीजन, जैसे यहाँ पे डिवीजन है, ये पूरा एफ यहाँ देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो ये एडिशन में है। नीचे के फर्स्ट सेकेंड थर्ड मल्टीप्लाई तो एडिशन में है। ओके, इफ ए बाई बी, ये दोनों फंक्शन में पहले कौन सा रूल लगेगा, डिवीजन रूल, log e a बाई b, तो log e के a माइनस log e के b, log a बाई b log a माइनस log b। पावर ऑफ पावर a पावर n, अगर किसी की पावर है उसको log लेते हैं तो पावर मल्टीप्लाई में चला जाता है n पावर b। यूज द थ्री फॉर्म। अब आप समझो, सबसे पहले आपने अगर log लिया, log y taking both sides down, that is whole function numerator and whole function denominator। तो सबसे पहले डिवीजन लगेगा, log 3 sin x square root s tan root s minus log 5s plus 4, पहले डिवीजन रूल लगाएंगे, कोसेक स्क्वायर 3 रूट s माइनस 4 s प्लस 2। अब इसके बाद log a b c फर्स्ट फार्मूला में गया, log 3 sin x स्क्वायर प्लस log रूट s प्लस log tan रूट s, ये भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बाहर माइनस s और माइनस हो जाएंगे, log 5s प्लस 4 माइनस log कोसेक स्क्वायर 3 रूट s माइनस 4 प्लस माइनस log x प्लस 2। सबसे पहले हम इसको log में रोके कर लेंगे, फिर क्या होगा, इसको डेरिवेट करेंगे। log x का डेरिवेट 1/x, ये सबसे पहले 1/3 sin स्क्वायर x हो जाएगा, फिर किसका डेरिवेट करोगे, sin स्क्वायर x का, तो sin का डेरिवेट cos x स्क्वायर, फिर से x स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो गया। यहाँ पे log 1 का ये रूट x है, 1/√x आ जाएगा, फिर रूट x का करेंगे तो 2√x हो जाएगा। log 1/tan√x, ये आप करेंगे अच्छे से, tan का डेरिवेट sec स्क्वायर रूट x का डेरिवेट 1/2√x हो गया, माइनस 1/5x प्लस 4, ये log का डेरिवेट हुआ, फिर √5x का प्लस 4 का करेंगे तो 2√5x प्लस 4, फिर 5x प्लस 4 का करेंगे तो 5, 1/कोसेक स्क्वायर 3√x माइनस 4, कोसेक स्क्वायर का 2 कोसेक 3√x माइनस 4, फिर कोसेक का करेंगे तो कोसेक 3√x माइनस 4, माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस cot 3√x माइनस 4, लास्ट में 3 माइनस x का करेंगे तो 3/2√x, इसका करेंगे -1/2। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा जो है, चाहे जितना बड़ा हो वो आंसर आएगा। ओके, पहली चीज तो हम क्रिटिकल पोजीशन में लॉग लेते हैं। सेकेंड थिंग, इफ द क्वेश्चंस में बी द फंक्शन ऑफ फंक्शन, कभी कभी क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, पावर में आएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेकेंड थिंग, फंक्शन ऑफ फंक्शन, जैसे
y इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर एक्स, ये पूरा फंक्शन है। सेकेंड क्वेश्चन y इक्वल टू साइन x पावर x, फंक्शन ऑफ फंक्शन y इक्वल टू cos x पावर sin x प्लस log x पावर x। पहले आप क्वेश्चन पहचानिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन। आप एग्जाम्पल 32 x पावर साइन x, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्रिटिकल पोजीशन। थर्ड log x पावर cos x, x पावर x 2 पावर साइन x। फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन x पावर साइन x पावर cos x। आप देखो तो क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ फंक्शन मोस्टली है। जहां पे फंक्शन ऑफ फंक्शन है वहां पे हमें लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग लॉग लेना ही पड़ेगा। हमने लिया क्या, log y। अब बार बार हम फार्मूले को लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यूज करेंगे। a पावर x पावर m log x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x log 1 प्लस 1 बाई x पावर बाई मल्टीप्लाई। अब आप डेरिवेट कर दो, log y x मल्टीप्लिकेशन लगेगा, दो फंक्शन है f1 f2। एक क्वेश्चन भी है आपका x प्लस 1 बाई x डी बाई डी एक्स, लॉग डेरिवेट लॉग का 1 बाई y, सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स। ये पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी, 1 प्लस 1 बाई एक्स। फिर इसको डेरिवेट करेंगे, 1 प्लस 1 बाई एक्स, log x 1 हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स। क्लियर है? एनी डाउट? नो। इसको आप सॉल्व कर लो, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, सिंपली x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, इस न्यूमरेटर से 1 प्लस x स्क्वायर, 1 डेरिवेट 0, 1 बाई x डेरिवेट माइनस 1 बाई x स्क्वायर, x की पावर माइनस ऊपर में प्लस log 1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx, y इधर आएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस log 1 प्लस 1 बाई x। y की वैल्यू यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 प्लस 1 बाई x पावर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर log 1 प्लस 1 बाई x। अब देखो y log y इक्वेशन है, log y, अब log y डेरिवेट 1 अपॉन y डिवाइड, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएगा, x गलत किया बेटा, यहाँ पे 1 प्लस x आएगा, 1 x प्लस 1 प्लस x ऊपर गया x स्क्वायर, 1 का डेरिवेट 0, 1 बाई x का माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो गया। लास्ट में y इस साइड आएगा तो y की वैल्यू जो है वो हम लिख देंगे। ओके, फाइव पॉइंट 5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Solution of 5.5 question number first, y equal to cos x, cos 2x, cos 3x। मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। हम ये f1 ले लेंगे, f2 ले लेंगे, f1 डिवाइड f2 प्लस f2 डिवाइड, तो जो f2 है उसका डेरिवेट करेंगे तो फिर से f1 f2 लगाएंगे, उससे अच्छा है कैलकुलेटर ला लेंगे। log y ABC है,
मल्टीप्लाई तो एडिशन मिल जाएगा, log cos 2x। अब आप डेरिवेट कर दो, सब को dy dx कंसीडर कर दो, log cos x प्लस dy dx log cos 2x प्लस dy dx log cos 3x। log y डेरिवेट 1 upon y dy by dx log x डेरिवेट 1 upon x मीन्स cos x। फिर से किसको डेरिवेट करोगे आप? cos x को। cos 2x dy dx cos 2x प्लस 1 upon cos 3x dy dx cos 3x। ओके, y इस साइड आ जाएगा, dy by dx cos minus sin x upon cos x। cos 2x minus sin 2x, 2 बाहर आ जाएगा, 2 sin 2x minus cos 2x minus 3 sin 3x cos 2x। ओके, y की वैल्यू आपको यहाँ पे रख देंगे, y इक्वल टू ये जो y की वैल्यू थी यहाँ पे रख dy by dx y वैल्यू cos x cos 2x cos 3x minus sin by cos minus tan x 2 tan 2x ओके minus 3 tan 3x। ओके, सॉल्व क्वेश्चंस, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, y equal to root x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 4 x minus 5। सिंपल वे में आएगा, x की पावर ये पूरा x मान लेंगे यानी xn माइनस 1, फिर इसको लेंगे यहाँ डिवीजन तो लगाएंगे, फिर डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, लॉन्ग प्रोसेस होगा। उससे अच्छा है आप टेबल लॉग ले लो, log y रूट मींस पावर 1 by 2 आ गया, log न्यूमरेटर मल्टीप्लाई एडिशन प्लस log x minus 2 डिनोमिनेटर कन्वर्ट नेगेटिव minus log x minus 3 minus log x minus 4 minus log x minus 5 पावर m that is the whole power 1 by 2 डायरेक्ट log में मल्टीप्लाई हो जाएगा, log a plus log b माइनस डिनोमिनेटर है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, हाई पार्ट में दो करोगे। अब डायरेक्ट डेरिवेट कर दो, log y डेरिवेट 1 upon y dy by dx, log डेरिवेट 1 upon x minus 1 1 upon x minus 2 minus x minus 3 x minus 4 x minus 5। ये y वैल्यू इधर ले आके ये पूरी वैल्यू रख के ये पूरा एलसीएम लेके साथ करें। ओके,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इक्वल टू log s पावर cos x। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में तो क्रिटिकल पोजीशन थी, लेकिन यहाँ पे तो कंपल्सरी log लेना ही है फंक्शन ऑफ फंक्शन, log x फंक्शन cos फंक्शन पावर ऑफ पावर, log y log s cos x। You know that log e power n log e cos x मल्टीप्लाई में आ जाएगा cos x log x, that is f1, that is f2, derivate d by ds log y cos s d by ds log s plus log s d by ds cos s, that is 1 by y dy by ds, log का डेरिवेट 1 अपॉन log s, डायरेक्ट में कर देता हूं, that is log s, फिर log s का डेरिवेट 1 अपॉन x, cos डेरिवेट sin s log s, y को इधर ले लो dy by ds, y की वैल्यू log s cos s upon s log s minus sin s log s, okay, that answer। If two are no function, question number 4, y equal to x power x minus 2 power sin x। अब आप यहाँ पे देखो ये x पावर x फंक्शन ऑफ फंक्शन है, 2 पावर sin x फंक्शन ऑफ फंक्शन है, यहाँ डायरेक्ट डेरिवेट नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे y इक्वल टू u प्लस b या माइनस b, कुछ भी है, u माइनस b, तो dy बाई dx du बाई dx माइनस dv बाई dx, तो एक साथ डेरिवेट नहीं करेंगे, सबसे पहले u कंसीडर हो गया x पावर x, फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो लॉग देना पड़ेगा, log u x मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ x log x, डेरिवेट करेंगे 1 अपॉन u du बाई dx x d बाई dx log x प्लस log x f2 d बाई dx, yes, तो du बाई dx क्या हो गया u x into 1 by x प्लस log x, बेटा u की वैल्यू डाल दो x पावर x 1 प्लस log x, ये u की वैल्यू आ गई। अब हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे v, देखो u इक्वल टू x पावर x, टेकिंग log u पावर x log x, log u डेरिवेट 1 अपॉन du by dx f1 into f1 d by dx log x प्लस log x d by dx x, d by dx 1 हो गया, यहाँ log x हो गया, log x डेरिवेट 1 by x x कैंसिल 1, इधर से u आया तो उसकी वैल्यू x पावर x 1 प्लस log x। कभी कभी ये एमसीक्यू में भी देखा है, छोटा क्वेश्चन है, u इक्वल टू x पावर x dy by dx, आप डायरेक्टली x पावर x 1 प्लस log x याद कर लो तो डेरिवेट नहीं कर सकते।